Hello everyone, my name is Saman Singh and today I'm going to take an interview of Mr. India Supranational 2023. He also represented India at Mr. Supranational 2023 and where he won the title of Mr. Best Talent Supranational. So I'll wait for him to join and then we'll start the interview. Okay, he joined. I am going to send the invite and then we'll join. Okay, I'm sending the invite. Okay, I sent you the invite. Please accept it. Hey, what's up? Hi. Hi, how are you? Actually, at that time, there was a glitch. I was sending you the invite and Mhm. it wasn't accepting. That's all right. Not a problem. Okay. So how Yeah. are you, first of all? How are you I'm doing great. right now? I'm doing great right now, and thank you for asking it. How are you? You tell me. And I'm also fine, doing great, just going on studying in college Mm-hmm. and doing everything side by side. Which college? Actually, my college name is Bhairav Ganguly College. Mm-hmm. It's a government-oriented college in Kolkata, and I'm Okay. doing a history honors in it. And before we go ahead, I would say something about you. You kept your name Mr. Intelligent, right? Yeah, you Yes. are. You are actually intelligent. Like you're much more mature I, than your age. So, thank you so much for the compliment. Thank you so much. no, That was in 2021 when I won a Mr. Intelligent title. And at that same time, I have taken many interviews of Miss Universe, Mhm. like you have seen in my channel. And now, also, and from 2022 to 2023, there was a gap because that time I've been focusing on my studies because of class 12 examination. And I was already started right now. So decided to then again start again Mhm. this thing and it's No, going no, well actually. you're doing great and go ahead. I really wish you luck and I know you will make it one day. Right? Thank you so much. Yeah. So I wanted to very first question is I wanted to ask you that how you've been created an interest on pageantry, being in a pageant line and representing India, winning the title. So what's the So story behind it? there's a very small and a big story, I should share with everyone. And along with that, I would say this thing in Hindi because काफी लोग यहाँ पे हैं जो हिंदी प्रेफर करेंगे. So Oh, उनके लिए हिंदी में मैं कहूँगा. So all basically ये right. जो पैजेंट का जर्नी था ये एज यूजुअल आई एम अ मिडिल क्लास बॉय और हर मिडिल क्लास का एक ड्रीम होता है जो हमें पूरा करना ही पड़ता है. जी. जो लोग हार मान जाते हैं वो लोग तो पीछे हट जाते हैं. हाँ. बट जब मेरा टर्न आया सो आई वाज नॉट इनटू मॉडलिंग एक्चुअली मुझे एक्टिंग का ज्यादा शौक था. बट एक बार मैंने जब कॉलेज में फैशन शो किया तो आई वांट दैट कंपटीशन और वहां से आई गॉट अ पुश कि अच्छा मैं मतलब अच्छा दिखता हूँ समवेयर और द अदर. फिर उसके बाद आई वॉन द फर्स्ट प्राइज सो अगेन आई वेंट टू दैट कंपटीशन और उसमें मैं वापस फर्स्ट आया सोलो में. सो आई वाज लाइक देयर इज Okay. समथिंग इनसाइड मी एंड इट वाज ओनली मी जो मैं खुद को रोक रहा था इतने टाइम से. सो मैंने अपने सिस्टर से बात की इस बारे में कि whether I should go into it or not. Then she told me there is a huge category criteria. आपको हाइट चाहिए, आपको लुक्स चाहिए, आपको पर्सनालिटी चाहिए, बात करना आना चाहिए, आप कैसे लोगों के सामने हैं. एंड इट वाज लाइक बर्डन एंड टेंशन एट द सेम पॉइंट कि इतनी सारी चीजें मैं अकेले कैसे करने वाला हूँ. बट वो दिमाग में आया कि ब्रो दिस इज इट, अगर आज नहीं किया तो हम आगे नहीं कर पाएंगे. तो डे वन से यू नो मैंने लिस्ट बनाई कि क्या क्या लगता है कंपटीशन को क्लियर करने के लिए. टाइम कभी नहीं लिखा मैंने कि कितना टाइम लगने वाला है क्योंकि इट्स नेवर प्रेडिक्टेड कि हाँ आप 2 साल मेहनत करेंगे 2 साल में मिल जाएगा. इट्स नथिंग लाइक दैट. इट्स ऑल अबाउट योर मेहनत एंड ऑल फिर जाके आपको वो चीज़ हासिल होती है. तो 3 साल लगे मुझे इस जर्नी में.
लाइक मैंने फर्स्ट टाइम सुपर नेशनल के लिए दिया था, मैं बहुत गंदी तरह रिजेक्ट हुआ था। सो उसके बाद मैंने वापस कॉम्पिटिशन्स लड़ा, एक्सपीरियंस गेन किया, और उसके बाद मैं पहला रूबरू में गया, काफी अच्छा था, लाइक उसमें मैं टॉप 20 में भी नहीं आया। बट उसके बाद आई वेंट टू टाइम फ्रेश फेस, तो उसमें मिस्टर जिलेट का टाइटल मिला। देन आई वेंट टू मिस्टर सुपर नेशनल। सो दिस वाज द सर्कल फॉर मी। बट ये सर्कल के अंदर इतने हर्डल्स होते हैं, आपको लोग रोकते हैं, आपको लोग टोकते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, आपको वो हर्डल्स क्रॉस करना है। यू कांट जस्ट स्टेयर दैट हर्डल ऑल द टाइम। तो वैसे हर्डल्स को पार करते गया एंड खुद पे बिलीव था। आई वाज नॉट बिलीविंग इन समवन एल्स कि हाँ वो करके देगा मुझे। इट वाज जस्ट मी। द फाइट वाज बिटवीन मी एंड माय सेल्फ, दैट्स इट। और लड़ते गए एंड फाइनली आई गॉट इट एंड आई वाज रियली हैप्पी। आई एम रियली हैप्पी राइट नाउ आल्सो कि आई गॉट इट। सो दिस वाज अ स्मॉल तो जर्नी, कुड शेयर। लाइक स्मॉल जर्नी बट पीछे का मेहनत बहुत ही ज्यादा, बहुत यही चीज है। बहुत ज्यादा, लाइक बहुत मेहनत होती है इसमें। और सारे, एक चीज मैं बताता हूँ, सारे अपकमिंग यूथ का तो ये होता है कि उन्हें मिस्टर इंडिया बनना है एंड वो मुंह उठा के चले जाते हैं। बट दे डोंट नो कि उनको मिस्टर इंडिया बनने के लिए क्या करना है। सो वो नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो कोई लेना नहीं चाहता है। सो इट्स अ बिग ट्रबल राइट नाउ। लाइक आप एजेंट पे जाने के लिए तो बहुत ही प्रिपेयर होके जाना पड़ता है। मैंने भी देखा है, जब मैं खुद पार्टिसिपेट किया था, मेरे भी उम्र में बड़े बड़े और भी कंटेस्टेंट थे, एंड दे वर वेरी गुड लुकिंग एट दैट टाइम। उनका फिजिक्स बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्ट्रांग, मतलब मेरा कुछ भी नहीं था, जीरो था उनके सामने। बट स्टिल आई गॉट द टाइटल ऑफ दिस मिस्टर इंटेलिजेंट। एंड आपने जैसे कहा कि हाइट एक तो क्राइटेरिया है, मेरा खुद का हाइट, लाइक आई एम 5'8" राइट नाउ, एंड पीपल ऑल्सो मॉक मी दैट कि you can't become Mr. India or you cannot represent your country because there's a cutoff of 6 feet, 6 feet tall, 6 feet 2 inches. So इसलिए इसलिए I मैंने don't मिस्टर think that. इंडिया कम्पीट किया था, क्योंकि जो 5'8" वाले लोगों को लोग चिढ़ाते हैं, लोग बोलते हैं कि तुम मिस्टर इंडिया Yeah, नहीं जा बहुत सकते हो। मुझे वही रूल ब्रेक करना था इंडस्ट्री में कि 5'8" कैन डू इट, दे कैन अचीव इट। इट्स वेरी सिंपल। and you already did थोड़ा, it. या इफ आई कैन देन यू कैन। एंड आप Yeah, तो आने you वाले are the जनरेशन। inspiration. You're the inspiration for the new generation who wanted to, participate for Mr. India, but they don't have much of the height. But the thing is that कि height से ज्यादा अपने अंदर का जो height होता है, मतलब अपना communication skill आपने जो कहा, then personality build करना उस हिसाब से, तो वो बहुत important है। बहुत आपने ज्यादा जैसे होता है। एक्चुअली ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग इसे कभी मार्क नहीं करते हैं। आपको लगता है कि आप अच्छे दिखते हैं तो आप बन सकते हैं, नहीं, आपको बात करना आना चाहिए। क्योंकि जी, इट्स नॉट अ रैंप वॉक, यू कैन जस्ट वॉक, हिट द रैंप एंड अगेन बैक टू स्टेज, इट्स नथिंग लाइक दैट। आपको खड़े रह के 10 लोगों के सामने फेस करना है, उन्हें सवाल जवाब करना है। दे लुक इनटू योर पर्सनालिटी कि व्हाट आर यू कैरिंग, कौन सा एटीट्यूड कैरी कर रहे हो अपने साथ। ये सारी छोटी छोटी चीजें होती थी। एंड मैंने एक बार में डायरेक्ट कंपटीशन में मैंने पार्ट नहीं लिया। मैंने बहुत रिसर्च किया। आई गिव 3 month ऑफ माई लाइफ, आई कैन से, सिर्फ रिसर्च में, कि व्हाट आई कैन डू इन माई ओन वे और उसे बेस्ट बेटर कैसे बनाया जाए। सो ये बहुत सब अच्छी। होता था। या एंड लाइक मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आपने तो लाइक मिस्टर बेस्ट टैलेंटेड अवार्ड तो जीता था, तो आपका डांस बहुत मस्त था, हम लोग सबने देखा। आज उसी डांस की वजह से यू वॉन्ट द अवार्ड। तो डांसिंग का पैशन कहाँ से था, या फिर अपने टैलेंट राउंड में सोचा था कि डांस दिखाऊंगा, तो इतना ही अच्छा डांस कर दिया कि डांस प्लस जैसा डांस कर दिया आपने, मतलब जो टीवी रियलिटी शोज आता है, लाइक जस्ट लाइक अ रेमो सर एंड ऑल एंड ऑल, लाइक इट वाज द बेस्ट यू हैव डन। I'm glad you are the first one who's saying this thing. And इससे But पहले I was actually, it the was the best. Then only he won the award. It's not like that. कि अच्छा नहीं था, he won the award. Actually, it was the best, loved by the audience, loved by the audience which were watching you from India and all the other countries, Mhm. and voted you for the best talented award. Yeah, actually it was something, जो planned नहीं था। And dancing was something जो मैंने स्कूल टाइम से स्टार्ट किया था, when I was in 9th standard. And I was really, I'll be honest with this, you know part, कि मैं बहुत बड़ा फेलियर रह चुका हूँ। मैं फेल होता था। आई यूज्ड टू गेट वर्स्ट रिजल्ट्स। मेरे जो फ्रेंड्स एंड ऑल भी आ रहे होंगे लाइफ में, उनको पता है मैं पढ़ाई में बहुत बेकार था, बहुत ज्यादा। बट वन डे आई वेंट टू ऑडिटोरियम, वहाँ पे डांस सिखा रहे थे एंड आई वाज डूइंग इट। पीछे 10-15 लोगों के बीच में आप खड़े रहते हो तो आप उसमें कर रहे हो। तो आई डोंट नो, मेरे सर को मेरा मूव्स अच्छा लगा एंड ही वाज लाइक कि
आप जरा स्टेज पे आओ, थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। एंड मैं डर गया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आपको स्टेज मिल रहा है। तो मैं गया, मुझे शेयर किया स्टेज उन्होंने, और उन्होंने कोरियोग्राफी दी, एंड मैंने वो परफॉर्मेंस दिया है। एक आई गेस वो इंडिपेंडेंस डे होता है, राइट? तो उसमें जब मैंने परफॉर्मेंस दिया तो सबको पसंद आ गया वो डांस। एंड आई वाज लाइक, मैंने कुछ किया भी नहीं, मुझे पता नहीं, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग होल शो। मुझे कुछ नहीं पता कौन ताली बजाएगा, कौन चिल्लाएगा, कौन क्या करेगा, बट आई वाज एंजॉयिंग इट। जब लोगों को पसंद आया तो वहां से मुझे पता चला कि आई एम अ डांसर। एंड जब 10th खत्म होने पे आ गया था, आई गेस, या, तो हमें फेयरवेल मिलता है। तो उस फेयरवेल में आई गॉट द बेस्ट डांसर अवार्ड। एंड Wow. इट वाज, या, एंड इट वाज अ शॉकिंग पार्ट फॉर मी, बिकॉज डम पर्सन को, मतलब 12 लोगों को मिलते हैं अवार्ड्स, एंड सारे इंटेलिजेंट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फुटबॉल, ये वो, जब डांसर की बारी आई तो इट वाज मी। इट वाज शॉकिंग फॉर मी एंड माय ग्रुप व्हिच वर बैक बेंचर्स, कि यार इसे कैसे मिल गया, ये क्या किया इसने। लाइक इट वाज अ प्राउड मोमेंट। आप 12 लोग में अकेले आप एक खड़े हो, तो मैंने बोला दैट्स इट, यही चाहिए था खाली मुझे। फिर डांस वहां से मैंने सीखना चालू किया, थोड़ा बहुत खुद से तोड़ मोड़ के करता था, बट माय सिस्टर डजंट बिलीव इट कि मैं डांसर हूँ, टू बी ऑनेस्ट। शी डजंट। सो मेरी मॉम को बहुत ये है, शी सेज कि मैं अच्छा डांसर हूँ, बट माय सिस्टर डजंट बिलीव इट। सो आई वाज लाइक, अब तो मैं डांसिंग करूंगा टैलेंट रॉक पे। एंड आई विल टेल यू वन मोर स्टोरी, लाइक ये कंपटीशन की बात है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जब मैं शो पे जा रहा था, लाइक सेट पे जा रहा था, तो मेरा सॉन्ग मिसप्लेस हो गया। जो एक्चुअल सॉन्ग था वो रहा ही नहीं। और तो तब मिस्टर सुपरनैशनल के लिए। या, जो मेन शो Oh my था, God. सो आई वाज लाइक कि वेट व्हाट, मतलब मैंने कोरियोग्राफी कर रखी थी, बट वो सॉन्ग नहीं था जो मैंने नहीं प्रिपेयर था। किया था। जी। एंड आई वाज लाइक, कर दो जो आता है। उसमें भी तो आपने लाइक दूसरा सॉन्ग चल दिया, उसमें भी तो आपने फाड़ ही दिया लाइक, मतलब बिना उसे कोरियोग्राफी किया नहीं था, लाइक हाँ। नेचुरली जो आया उसी में, लाइक यू हैव डन योर बेस्ट, लाइक सीरियसली बहुत अच्छा था। वी हैव एंजॉयड अ लॉट योर रिप्रेजेंटेशन। हम लोग पूरा जर्नी देखते थे पोलैंड में, मिस्टर नेदरलैंड, आई गेस योर बेस्ट फ्रेंड राइट? या, राइट तो राइट। मिस्टर नेदरलैंड के साथ मैंने पूरा जर्नी आपका फॉलो किया, देन ओनली आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई फॉलोड योर जर्नी। ओ यू एंड जब डिड। मिस्टर इंडिया सुपरानेशनल जब आया, यस, मिस्टर इंडिया सुपरानेशनल आया था कि हम मुझे पता नहीं था कि आप जाने वाले हो उसमें, बट देन आई सॉ दैट यू आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग। आप भी जब पार्टिसिपेट कर रहे थे, मैंने बोल दिया था कि इन्हीं को ही जीतना है, बट मुझे पता था आप ही जीतेंगे, एंड देन यू वॉन्ट मिस्टर इंडिया सुपरनेशनल पैजेंट। क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले आपने रूबेडो में किया था, यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड उधर मैंने देखा था और भी जितने थे वो लोग भी अच्छे ही थे, लाइक अच्छे कंटेस्टेंट थे, बट दे आर द न्यू कमर्स एंड नॉट मच एक्सपीरियंस। तो आप एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे थे। देन आपका शुक्राचार्य भी मैंने देखा, वो भी बहुत अच्छा था। मैंने सब देखा। आपने देखा ना मैम, रियली ग्लैड आपने देखा, and बहुत प्यार से आप उस बात को कह रहे हैं इतनी कम उम्र में होके। आई रियली बिलीव कि आपका लाइक लाइफ बहुत अच्छा है इन फ्यूचर, एंड जस्ट बी द सेम पर्सन, ओके? यू आर वेरी पोलाइट, वेरी डिसेंट, थैंक एंड आई यू सो रियली मच। बिलीव दैट आप कर लोगे, क्योंकि आपको बहुत, आपने कम उम्र में बहुत अच्छी नॉलेज लिया, ओके? सो डोंट स्टॉप इट, आई वुड से डोंट स्टॉप इट, हो जाएगा। You know, the thing is that I'm a huge pageant fan. बचपन से I followed pageant. Rohit Khandelwal watched the first, like my first, like watched pageantry was Rohit Khandelwal का Mr. World में representation. We get to know about the Mr. Miss World के बाद मुझे पता नहीं था कि Mr. World होता है. Then when I saw in news channels that Rohit Khandelwal won Mr. World title, it's a beauty pageant. वहीं से मेरा मतलब जो होता है pageant के प्रति एक प्यार इच्छा जागा. एंड मैं pageant के प्रति बहुत सीरियस हूँ, लेकिन फिटनेस मेरा कुछ भी नहीं है. आई वर्क ऑन दैट एंड देन आई गो फॉर मिस्टर सुप्रानेशनल, क्योंकि वर्ल्ड का तो अभी पता नहीं है क्या होगा, नहीं, तो सही मिस्टर बात है। सुप्रानेशनल का एंड डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड, आई वुड जस्ट से, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो ऊपर वाले के पास भी वो हक नहीं होता है कि आपसे कुछ छीन सके, ठीक है? तो आप सिर्फ अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, जितना टाइम लगे, जितना आप, मैं एक चीज लोगों को भी सजेस्ट करूंगा जो भी है, अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, सबसे पहली चीज आप सैक्रिफाइस करिए। अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने खाने को, अपने पीने को, अपने सोने को, सब चीज को छोड़ दो, ठीक है? बनना है रात रात दो, मैं रात के 4-4 बजे तक उठ के यही पीछे जो, ऐसे मैं कर्टन को खोलूंगा तो एक विंडो है, मैं इसके सामने खड़े रह के रात भर रिहर्सल्स करता था कि मैं बात कैसे करूंगा, मैं इंटरव्यूज कैसे दूंगा, जैसे मैं आज आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं यही कैसे करूंगा, मैं सारी बातें करता था खुद से।
और मेरे मॉम डैड मुझे पागल कहते थे कि ये पागल हो गया है, इसे पता नहीं ये क्या कर रहा है और हमें भी पता नहीं ये क्या कर रहा है। एंड आई वाज लाइक आई विल गिव यू द रिजल्ट। ठीक है, मॉम डैड को तो रिजल्ट चाहिए, तो Yeah, वो उनके डांट। sometimes, but हम्म, yeah, या तो उनको तो रिजल्ट्स चाहिए थे, एंड रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मेरा इतना था कि जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक मुंह बंद रख के काम करो। एंड एक चीज, वेरी स्मॉल थिंग जो मैंने इससे मिशन मंगल से सीखी थी ये बात, कि इफ यू थिंक कि आपको वो चीज चाहिए एंड आपको लगता है कि आपकी वो हैसियत नहीं है या आपकी वो औकात नहीं है, तो देयर वाज अ डायलॉग कि अगर कुछ करने के लिए देर इज अ परसेंट, देर इज अ चांस की 0.0001% भी चांस है ना उस चीज को अचीव करने की, या एबिलिटी है आपके पास, देन शट योर माउथ एंड स्टार्ट वर्किंग। सिंपल। and actually success मिला भी मिशन मंगल में साइंटिस्ट को, एस्ट्रोनॉट को, and today you have also achieved your success. तो लाइक मुझे पूछना है दैट कि जब पोलैंड आप गए फॉर द कॉम्पिटिशन, हम्म। बहुत दिन से पोलैंड पे, तो आपको मतलब उधर कैसा लगा वहाँ का एनवायरनमेंट, लाइक हाँ। कैसा था सब कुछ? एंड मिस्टर सुप्रानेशनल के एनवायरनमेंट अपने के ग्रुप के सर्कल में कि आपका वो रहता है कि हम्म। लाइक सब जो जाते हैं उधर रिप्रेजेंट करने के लिए, सब कोई जीतता रहता है, सबका एक ही मुकाम रहता है कि आई हैव टू विन मिस्टर सुप्रानेशनल. तो राइट। अपार्ट फ्रॉम हाउ यू एस्टैब्लिश मच ऑफ द फ्रेंडशिप विद अदर एंड अदर मिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो उसके बारे में कुछ बताइए. एंड एज वेल एज उसके बारे में बताइएगा व्हेन यू फर्स्ट टाइम मेट प्रगन्या, बिकॉज she was also representing her country at Miss Supranational. So at the same time, you both are representing your country. तो उस experience के बारे में भी आप थोड़ा डेफिनेटली, बताइए. डेफिनेटली आई विल गो अहेड। उससे पहले मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, भरत शर्मा, उसको मैं हाय कहूंगा। हाय भरत, आई लव यू ब्रो। Okay. आई लव यू ब्रो। एंड मैं यही हूँ, बस 2 मिनट आई एम गिविंग अ इंटरव्यू, सो या। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, जब आपने कहा पोलैंड के बारे में, आपने मेरे स्माइल से ही पता लगा लिया होगा कि मैं कितना खुश था वहाँ पे। एंड Yes. उनका And इन्वायरमेंट, such excited. या एंड इट्स सो स्मूथ, कितना स्मूथ उनका इन्वायरमेंट होता है। यू गेट फ्रेश ऑक्सीजन वहाँ पे, इतने पोलाइट लोग रहते हैं, एंड उनका ट्रैफिक नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। उनको गाड़ी चलाने आता है, आई नोटिस दैट। दे आर वेरी फ्रेंडली। अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर करेंगे, दिल गिव अ स्माइल, दिल से गुड मॉर्निंग और समथिंग लाइक दैट। उनके जेस्चर्स बहुत प्यारे होते हैं, एंड ऐसे रहते हैं कि एक अननोन पर्सन को भी अपना बना लेता है। एंड हम तो है इंडिया वाले, हम तो जहाँ जाते हैं वही हमारा बसेरा, तो हम तो निकल गए बैग बैग पैक करके। अब पता नहीं कौन मिलेगा कौन नहीं, पर जैसे ही मैं उतरा, मेरे दिमाग से सबसे पहली चीज निकल गई कि मैं कंपटीशन लड़ने नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे आया हूँ अपना बेस्ट देने, क्योंकि सारे बेस्ट हैं, इसमें से मैं भी बेस्ट कैसे बनूंगा मुझे वो देखना है। तो बाकी लोगों को मैं एज अ कॉम्पिटिटर नहीं देखता था, मैं एज अ फ्रेंड देखता था कि यार इस कंट्री से मेरा ये फ्रेंड आया, उस कंट्री से मेरा ये फ्रेंड आया। हमने इतने अच्छे से प्यार से पहले दिन में ही बॉन्डिंग बना ली थी कि उनके साथ ये मुश्किल हो जाता था अगर मैं उनके साथ घूम नहीं रहा हूँ तो। वो मुझे ढूंढते थे कि यार ये राज इज नॉट हियर, व्हाई इज नॉट हियर। एंड ऐसा भी नहीं बोलते कि राज नहीं है, जैसे मिस्टर इंडिया इज नॉट हियर, वो कहाँ गए, कॉल हिम, वी वांट हिम। वी यूज टू डू जैमिंग, हम लोग रैप गाते थे, देखो तो इधर मेरे गली में है घर, छोटे छोटे ये सब सब करें, दे यूज टू एंजॉय। वो लोग डिमोटिवेट नहीं करते। तो एक चीज होता है ना कि आपको अट्रैक्ट करती है, वो उनमें ऑरा होता है, और आपके पास भी है, तो यूनिवर्स आपको बेस्ट दे देता है। और जहां तक बात है प्रज्ञा की, तो जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, खत्म किया, आपने शायद इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा होगा मेरा। Ah, Jai उसे Shri Ram. Like it was the best. Like you promoted our country. Like wholly आपने promote किया. Like Jai Shri Ram was like वो जयकारा ही लगा दिया, वही काफी था हम सनातनियों के लिए, एंड एज वेल एज हम इंडियंस लोग के लिए. वी आर वेरी प्राउड एट दैट टाइम. तो वो दिल से आ गई थी उस टाइम पे कि हमारे भगवान को, लेट्स इंट्रोड्यूस टू एवरीवन कि हम अपने जमीन से कितने जुड़े हुए हैं, हम अपने कंट्री को कितना प्यार करते हैं, भले ही कुछ गलत हो या कुछ सही हो, पर प्यार प्यार होता है। एंड Yes. एवरीवन वाज एंजॉयिंग व्हेन आई वाज गिविंग माय इंट्रोडक्शन, एंड इट वाज क्वाइट शॉकिंग क्योंकि मैंने उसमें भी कुछ प्रिपरेशन ठीक से की नहीं थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट Okay. मेरे स्पीच थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे। तो इट वेंट रियली वेल, तो मैं साइड में जाके बैठ गया उसके बाद। एंड सब खत्म होने के बाद प्रज्ञा, लाइक शी सॉ मी एंड आई वाज लाइक, ओ हाय प्रज्ञा, हाउ यू। देन शी केम एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग। शी वाज सो लाइक पोलाइट, इतने प्यार से उसने बात की होगी। मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा था कि
हम कभी मिले नहीं है, या दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग, ऐसा लग रहा है 10 साल पुराने दोस्त हैं। एंड फर्स्ट थिंग जो हमारे मुंह से निकलती है वो हिंदी में होती है गालियां। बट वैसी वैसी गालियां नहीं निकल रही थी। मतलब एक फीलिंग होती है ना कि यार मुझे दोस्ती खाने। है। बट प्रज्ञा के लिए मैं एक चीज बोलूं, आई गेस मुझसे ज्यादा प्रज्ञा ने वहां पे सरवाइव किया है सबसे ज्यादा, क्योंकि शी इज अ वेजिटेरियन। ठीक है, शी वॉज बेस्ट आउट पूरे कंपटीशन में, मैं कंपटीशन की बात नहीं करूंगा उनकी। बट जब उनकी सर्वाइवल की बात आई, आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन बट शी वॉज इन, तो उनको खाना बहुत मुश्किल होता था वहां पे, कि खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, सही खाना नहीं मिल रहा, बिकॉज वहाँ पे नॉनवेज को ज्यादा प्रेफरेंस दिया तो जाता नॉन था। वेज, या सब नॉन वेज। तो फॉर नेक्स्ट 14 to 15 days उन्होंने बहुत ज्यादा सरवाइव किया, एंड आई यूज टू हेल्प हर विद फूड एंड ऑल जो मुझे मिलता था, बिकॉज वी हैड अ ग्रोसरी शॉप बाजू में, तो मैं उसके लिए लेके जाता था कि प्लीज यू हैव समथिंग, बिकॉज शी हैज टू परफॉर्म, शी यूज टू गिव हर बेस्ट, लाइक उनका एनर्जी मैच करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड बिना कुछ खाए वो एनर्जी मैच करना, तो मैं प्रज्ञा को देखता था एंड आई वाज लाइक कि शी इज द बेस्ट। ठीक है, भले वो जीते या ना जीते, बट शी इज द बेस्ट। एंड पूरा टाइम वो मेरे साथ बात करती थी, मेरे साथ रहती थी, एंड हमें वो बॉन्ड इतना अच्छा लग गया था कि हमें ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि हम दूसरे कंट्री में हैं। ऐसा लग रहा था यही इंडिया। सो दिस इज हाउ इट वेंट, एंड हैट्स ऑफ टू प्रज्ञा, शी इज रियली अमेजिंग एंड शी वाज वर्थ इट, शी इज। ओके, सो लाइक अभी तो आपने लाइक मिस्टर सुपरनेशनल में रिप्रेजेंट किया लास्ट ईयर, तो अभी आगे का आपका क्या प्लान है? इन विच पैजेंट यू वांट टू डू नेक्स्ट? क्योंकि इतनी जल्दी तो आप उड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतने दूर जब आ गए तो और कुछ कदम चलकर इंटरनेशनली फेमस सेलिब बनना, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होना विल बी योर, क्या बोलते हैं, आपका वो है। हाँ, गोल तो है, आपको अचीव करना है। तो अभी नेक्स्ट आपका प्लान वे में क्या है? या तो पेजेंट्री, एक्टिंग या डांसिंग? सो बेसिकली आई एम इनटू एक्टिंग, मैं बहुत पहले से ही एक्टिंग में था। हाँ, ये व्हेन आई वाज 16 years तब से मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी। आई गॉट वन प्रोजेक्ट उस टाइम पे, बट मैंने उसे मना कर दिया था, जस्ट बिकॉज आई वाज स्कैर्ड मेरे डैड मुझे चिल्लाए ना अगर मुझे वो टीवी पे देखेंगे। बट वो ओके। मेरी सबसे बड़ी गलती थी लाइफ की। बट उससे मैंने सीखा काफी कुछ, और मैं अपने आप को सबके सामने कह रहा हूँ, मैं अपने आप को एज अ मेगा स्टार देख रहा हूँ इन फ्यूचर। ओके, एंड आई वोंट से कि ये जल्दी मिलेगा। जल्दी तो नहीं मिलेगा, मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत है, बहुत लेकिन सैक्रिफाइसेस जरूर करने मिलेगा। से। हाँ ना? या आप बहुत पॉजिटिव है। No, सो a positive vibe, if we say positive, like positive, अगर बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा। That I have learned from the many spiritual leader. अगर आप रोज बोलेंगे कि मेरे साथ ये होने वाला है, तो वो होगा ही होगा। And if we यूनिवर्स say का कि call। I will become the mega star, आप जरूर बनेंगे मेगा स्टार। And we are here to support you. हम लोग आपका फैन है, वी आर द सपोर्ट सिस्टर, हम लोग आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, और आप जहाँ कहीं पे मिलेंगे वी विल सपोर्ट यू। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वांट। और यही है, मेगा स्टार के लिए अभी तैयारी चल रही है, धीरे धीरे करके चलना है। बट क्योंकि सी आई टेल यू वन थिंग, फेम इज समथिंग जो सब हैंडल नहीं कर पाते हैं। और फेम में रह के आपके साथ बहुत लाइक आपका प्राइवेसी खत्म हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट, आप नॉर्मली बात नहीं कर सकते किसी से भी, आपको हर एक चीज में आपको पूछना पड़ता है। आप अगर अकेले हो, आपके पास सब कुछ भी है खाने पीने के लिए, स्टिल यू विल ओवर थिंक, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज गोइंग ऑन, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स गोइंग ऑन, एंड यू विल हैव टू कीप योरसेल्फ काम। तो ये सारी चीजें होती है, एंड उस चीज को मैंने सीखा विद इन 7 मंथ अभी कंपटीशन के बाद। एंड आई थिंक सो नाउ आई एम रेडी कि अपना डेब्यू एंड ऑल दूं, और इंडस्ट्री में घुसते हैं। क्योंकि ओके, see, तो supranational was my this was would be the last thing. Supranational was my last pageant, और ये मेरा ड्रीम था। मेरा ड्रीम ओके, मिस्टर वर्ल्ड या समथिंग एल्स नहीं था। सो आई बिलीव लाइक जितना मेरा है मुझे उतना ही करना चाहिए, उससे ज्यादा बियॉन्ड करने जाऊंगा तो वो एक लालच हो जाएगा या वो घमंड हो जाएगा, जो मुझे रखना नहीं है। मुझे जितना मिला मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी, मुझे इतना ही हक चाहिए। अब मुझे किसी और चीज पे हक चाहिए। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और लाइक मुझे पूछा है आपका फिटनेस, तो हमने देखा यू हैव अ सिक्स पैक, लाइक यू, तो फिटनेस के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? लाइक मैं तो अभी बहुत ही मोटा हूँ, लाइक हम्म। मैं जो दिख रहा हूँ इतना जो तक वो नहीं हूँ। लाइक अगर आप मुझे सामने से देखें तो
आई एम क्वाइट अनहेल्दी, मैं बहुत अनहेल्दी हूँ। सो लाइक मेरे जैसे भी और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे मॉडलिंग के लिए, वो वांटेड टू पार्टिसिपेट एंड डू मॉडलिंग, बिकम अ मेगा स्टार। तो उनके लिए क्या कहना चाहिए, एज वेल एज आपका फिटनेस रूटीन क्या है, एंड हाउ मच यू प्रायोरिटाइज योर फिटनेस एज वेल एज डूइंग एक्सरसाइज एंड ऑल? सी इफ यू विल टॉक अबाउट माय फिटनेस जर्नी, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सबके लिए फॉलो करना। बट अगर मैं बेसिक्स पे आऊं तो मैं इतना ही कहूंगा लोगों को कि ना, सी आफ्टर 20 या आफ्टर 19 ही अपना बॉडी या फिजिक पे ध्यान देना चालू करें। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, 18 और 19 एक ऐसा एज है जहाँ पे आपका ना हाइट बढ़ने के चांस होते हैं नॉर्मली। तब तक आप गेम्स खेलिए, आउटडोर गेम्स खेलिए, बट प्लीज अपने बॉडी पे प्रेशराइज या प्रेशर कोई भी मत डालो कि हाँ ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में 18-18 साल के बच्चे अच्छी बॉडी बना रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, और हैवी लिफ्टिंग करके 24 के बाद उनको बैक में पेन हो रहा है। एंड मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 20 या 19, या मतलब 19 के बाद ही ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था। आई गॉट अ गुड ट्रेनर। हाँ, फर्स्टली आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज पहले आप एक अच्छा ट्रेनर लें। खर्चा है बट खर्चा करे, अगर कुछ बनना है तो खर्चा है, इन्वेस्टमेंट तो वो हाँ, उसे ही वो कहते तो हैं ना। इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता प्लीज है। ट्रेनर लीजिए। अगर 3 महीने का ट्रेनर, जब तक आप सीख नहीं रहे तब तक आप ट्रेनर लो। ठीक है, मैंने लिया 3 महीने, मुझे इतना सिखा दिया उन्होंने कि ना, लाइक उनकी उनका मैंने एक्चुअली अपने सर का सपना पूरा किया ये साच लेके। उन्होंने मुझे तीन हाँ, महीने ऑब्वियसली उनके लिए बहुत या प्राउड का बात होगा। उन्होंने मुझे स्ट्रगल करते हुए देखा 3 महीने, एंड ही वाज लाइक कि अब मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगा, अब मैं तुझे ट्रेन करूंगा बिकॉज यू आर दैट स्पिरिट। और मैंने बोला सर बदले में आपको क्या चाहिए? इज लाइक मुझे तुझे एक दिन बड़े से सेट पे देखना है, बड़े से शो पे देखना है। इट हैपेंड एंड आई वाज लाइक सर, आई कॉल्ड हिम, मेरे सर अभी बाहर है, बट आई कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक सर आई मेड इट। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग कि लाइक आई वाज बिलीविंग इन यू, और तुमने कर दिखा। तो मैंने अपने सर को गुरु माना, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, रोज मोटिवेशन में उनके सामने रोता था, चीखता था, चिल्लाता था। खाना तो उन्होंने मेरा बर्बाद कर दिया था, बट लाइक डाइट रूटीन। डाइट बहुत, मतलब उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट किया था बिकॉज आई डायरेक्टली स्टार्टेड विद एडवांस। बिगिनर से मैंने स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि आई वाज लाइक आई वाज हैविंग दैट स्ट्रेंथ कि मैं उठा सकता हूँ, लिफ्ट कर सकता हूँ। तो मुझे डायरेक्ट एडवांस से स्टार्ट करना पड़ा। और काफी इंजरीज होती है बीच बीच में, बहुत इंजरीज हुई थी, जैसे मेरे शोल्डर में अभी भी है थोड़े प्रॉब्लम, एंड आई हैव बैक में थोड़े से प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हैवी लिफ्टिंग और नॉट प्रॉपर स्लीप एंड ऑल। तो ये सब मैंने फेस किया, बट इतना समझ में आया कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट। आप अगर शाम को जिम जाते हैं तो शाम को ही अगले दिन जिम जाओ, ये नहीं कि कल आज शाम को गए कल सुबह आप मॉर्निंग में जाएंगे। उससे क्या होता है ना, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, और आपकी बॉडी को कितना ही बना लो आप, उसको रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर पार्ट में। तो बेसिक बेसिक चीजें थी, उसे फॉलो करते गए। ट्रेनर ने जो जो कहा मैं उसे आंख बंद करके मैंने फॉलो किया, बिकॉज इफ ही हैज अ बॉडी तो मेरा भी बॉडी बन जाएगा। मैं इतना मान के चल रहा था चुपचाप। लगा टाइम, 6 मंथ, 7 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। और मेहनत करो, और रो, और सेक्रीफाइस करो, और खाना खुद से बनाना चालू करो। एंड बेस्ट थिंग है, मेरे सर ने मुझे सजेशन दी थी कि एक फिटनेस फ्रीक कभी भी खुद का खाना खुद बनाता, क्योंकि आप जब खुद का खाना खुद बनाते हैं तो आपको पता है कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, आपकी बॉडी को कितना चाहिए, ये आप जानते हैं। माँ का खाना खाओगे तो आप मोटे ही होंगे, क्योंकि माँ खाने में प्यार मिलाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, उससे पेट और मन दोनों भर जाता है। बट आप जब जिम कर रहे हैं, आप जब अपने गोल की तरफ है, तो आप अपना मन को नहीं लाइक बीच में ला सकते। मन मार दो, साइड में कर दो मन। मम्मा से तो मेरी मम्मा मुझ पे चिल्लाती थी कि तू घर पे खाना क्यों नहीं खाता है, तू घर से क्यों नहीं खाता है, मतलब मेरे हाथ का क्यों नहीं खाता है। इट्स लाइक मॉम, मेरा गोल चल रहा है ना, थोड़ा सा रोने वाला टाइम है मेरे लिए, बट इट्स ओके। और मेरी मॉम रोती थी मुझसे ज्यादा कि यार मेरा बेटा कुछ खा नहीं रहा, कुछ ये नहीं कर रहा। सो दिस दिस वाज समथिंग, फिटनेस की जर्नी मेरी। बट या ज्यादा कुछ नहीं, दिन में सिर्फ 1 घंटा 2, अगर आप बिगनर हैं, और व्हेन यू आर इनटू प्रोफेशनल तो 2 घंटा दीजिए। 2 घंटा मिनिमम अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखिए, और कार्ब्स कम रखिए अगर आप मॉडलिंग में जाना चाहते हैं तो क्योंकि दैट्स द बेस्ट थिंग आप कर सकते हैं अपने बॉडी के लिए। कार्ब्स, प्रोटीन, आपको पता चल जाएगा इफ यू गूगल इट क्या होते हैं फूड में। एंड अलोंग विद दैट आपका आता है लास्ट में कि आप रेस्ट क्या दे रहे हैं अपने बॉडी को। खाना वाना सब खा के कितना टाइम, 8 आवर्स की तो स्लीप चाहिए होती है।
और मेरे टाइम पे तो आई यूज्ड टू वर्क आउट ट्वाइस अ डे। लाइक उतना मैंने एलिजिबल, क्योंकि उतना एलिजिबल करना पड़ता है आपको बॉडी को पहले। आप सुबह जाके कार्डियो कर रहे हैं एम्प्टी स्टमक, फिर रात को आके आप अपना हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, और आपके खाने में प्रोटीन ज्यादा है, कार्ब्स कम। कार्ब्स से हमें एनर्जी आता है, प्रोटीन से मसल्स बढ़ते हैं। और आपको क्या कहते हैं, कार्ब्स ही कम है, आपकी एनर्जी कम है, और उसमें भी आपको 2 बार जिम करना है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू नो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट एक ट्रेनर ही आपको ये बता सकता या एक गुड ट्रेनर, राइट ट्रेनर होना बहुत है। जरूरी है, बहुत तो मुझे भी बहुत। मतलब किसी भी चीज में, कोच Yeah. में। एंड लाइक मैं एक और पूछना चाहूंगा, लाइक हम्म। लाइक मिस्टर इंडिया सुपरनेशनल से पहले आपने क्या ग्रूमिंग ली थी या किसी से, या वो भी खुद से आपने करके एंड यू वॉन द पैशन? खुद से किया था, सब सब कुछ खुद से किया था। और अभी थोड़ी हंसी आती है वो बोलते हुए कि, मतलब देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, यूनिवर्स को जब मैंने बताया कि मुझे ये बनना है, तो यूनिवर्स ने अपने तरफ तरफ से भी बहुत लोगों को मेरे पास भेजा। ठीक है, लेकिन आपके पास जो चीज आ रही है, ये आपके ऊपर है कि आप नॉलेज कैसे ले रहे हैं। अगर आप, मुझे कुछ दिख रहा है कि इसमें वो चीज है जो मुझ में होनी चाहिए मिस्टर इंडिया बनने के लिए, और मैं उसको अगर बोल दूं कि ब्रो मुझे ये तुम सिखा सकते हो क्या, वो नहीं सिखाएंगे आपको। देन यू हैव टू बी स्मार्ट, कि उनसे वो चीज आप कैसे ले रहे हैं नॉलेज, वो आपको आइडेंटिफाई करना रहता है। यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया, भेज दिया वैसे पर्सन को, लेकिन आप अपना काम कैसे निकाल रहे हो, दैट्स अप टू यू। तो मैं वो करता था, मुझे जो चीज जिसमें दिखती थी अच्छी, मैं वो चीज अपने तरीके से निकाल लेता था। एंड आई यूज टू रिहर्स इट अगेन एंड अगेन, जब तक परफेक्ट नहीं होता तब तक करते जाओ करते जाओ। मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी, मेरे है फ्रेंड्स अभी भी लाइफ पे, दे नो इट वेरी वेल, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब थी। एंड सेम यूनिवर्स को यार, मेरा भी इंग्लिश हम्म, लाइक पास्ट 5 years पहले मेरा भी इंग्लिश बहुत खराब था, तो हम्म, मैंने बहुत मेहनत करके अपने इंग्लिश को ठीक, स्ट्रॉन्ग किया, बिल्डअप किया है। है ना, एंड वो वो तो है। हुआ भी, मुझे मालूम नहीं था कि उस टाइम में कि लाइक आज से 5 साल पहले अगर मैं जाऊँ खुद को देखूँ, हम्म, तो मुझे बिलीव नहीं होगा कि मैं अभी इतना अच्छा इंग्लिश बोलता हूँ। इवन हम्म। मेरा क्लास 12th में 98 मैंने लाया था अपना इंग्लिश में, मैं खुद ही शॉक था उस समय। दैट्स See, सो this is डैम what I was saying. मच इन इंग्लिश। This is what I was saying. एंड एक पॉइंट और ऐड करूंगा, जब वो ट्रेनर वाली बात कह रहा था, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जब आप स्कूल जाते हैं, तो आप डायरेक्ट बुक खोल के तो बैठ के पढ़ेंगे नहीं, नहीं, है ना। आपको एक टीचर। टीचर तो चाहिए जो आपको पढ़ाएगा। तो वैसे ही लाइफ में हर एक पार्ट में जो भी चीज आपको सीखनी है, सबसे पहले ढूंढिए एक गुरु को, कि सर मुझे तो पता नहीं है, पर मुझे ये करना है। बाकी गुरु अगर अच्छा हुआ, पहले ये देखना बहुत जरूरी है, अच्छा गुरु मिले आपको। अगर गुरु अच्छा हुआ, तो बिना पैसे लिए भी आपको बना देगा। तो ट्रेनर में ये चीज देखना कभी भी, या किसी भी फील्ड में आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल में टीचर हो, बट किसी भी रैंडम इंसान का जिसका इंग्लिश अच्छा है, तो उससे आप बात करते करते आप वो वोकैबुलरीज अपने अंदर ले सकते हैं। सो या तो हाँ, वो तो है, लाइक आपने कहा जो चाहिए वो मिलता है, मेहनत तो करना ही हम्म, पड़ता है। दिस इज अ प्योर थिंग। एंड और लाइक नेक्स्ट मैं ये भी पूछना चाहूंगा, हम्म। आप लाइक बिलोंग कहाँ से करते, लाइक यू लिव इन मुंबई राइट नाउ, एम आई राइट? आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन नवी मुंबई। ओह अच्छा, यू आर बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, ओके। या सो लाइक आपने कभी, लाइक कभी कोलकाता आपने कभी आया? नहीं, कोलकाता आने का बहुत प्लान है मेरे। ओके, मेरी एक सिस्टर वहाँ वहाँ पे ही रहती है, एंड आई वांट टू गो देयर। एंड अलोंग विद दैट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट कोलकाता, क्योंकि एक्चुअली मेरा गांव, मतलब मेरे एंसेस्टर्स जो है वो बिहार से हैं। तो मेरे भी सेम। कोलकाता, राइट, तो कोलकाता एंड बिहार आर वेरी नजदीक नजदीक समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन। तो मुझे काफी लोगों पास, ने बोला, सॉरी, लाइक कहाँ से, लाइक बिहार कहाँ से? यू नो, पटना। ओके, पटना मेरा तो गया है, लेकिन मैं अपना जो एंसेस्टर का जो लाइक गांव है, कभी आज तक लाइफ में गया नहीं है। मेरी जो फैमिली है वहीं पे आके है, एंड हम लोग कभी गए आई नहीं। आई यूज्ड टू स्टे विद माय एंसेस्टर्स ओनली, बट अब वो नहीं रहे, वो एक्चुअल एंसेस्टर्स हो चुके हैं। सो या ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो लाइक थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। मैं अब आपको ज्यादा लाइक इंडल्ज नहीं कर, no, no, आपका भी I'm enjoying it. पढ़ाई If you का। want to ask more question, I'm okay with it. ओके, देन लाइक देयर इज एक जन ने क्वेश्चन पूछा Hmm. कि आस्क हिम व्हेन इज मिस्टर सुपरनेशनल इंडिया 2024, लाइक समबडी इज आस्किंग दैट मिस्टर इंडिया सुपरनेशनल कब होने वाले हैं? Uh,
सी आई वुड से कि इसी मंथ में होने वाले हैं. ओके. कुछ दिनों में आ जाएंगे डिटेल्स. तो एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग, शायद एक्चुअली सी ऑडिशन वाले प्रोसीजर्स तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट. हम्म, अब उनको बुलाया जाएगा डायरेक्ट ऑडिशन के लिए, लाइक मेन शो के लिए. सो मेन थिंग यही रहेगा कि जितने भी लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट बी प्रिपेयर. कभी भी आपका कॉल आ सकता है एंड you'll have to leave, क्योंकि ये मई में ही होगा, क्योंकि मेन कंपटीशन होता है जून या जुलाई जुलाई में होता है, जुलाई में, पोलैंड जुलाई में, पोलैंड में. यस, तो यू हैव ओनली 1 मंथ, की 1 मंथ के अंदर आपको सब कुछ कवर अप करके देना पड़ेगा. देना पड़ेगा. एंड एक और चीज था, लाइक एक जन, लाइक एक है वो भी एस्पिरेंट है पेजेंट का, सो ये आस्क्ड मी दैट कि मिस्टर सुप्रानेशनल में जो लाइक स्टेट कट ऑफ होता है वो कैसे होता है, लाइक स्टेट विनर कैसे कोई बनेगा, क्योंकि एक स्टेट को एक ही जन ही रिप्रेजेंट करता है, हम्म. तो उसमें कट ऑफ कैसे होता है, लाइक क्या प्रोसीजर होता है. सो द प्रोसीजर इज, आपको एक इंटरव्यू कॉल आता है, ठीक है, एंड आपको उस इंटरव्यू कॉल में काफी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो करनी पड़ती है, एंड वहां पे आपका डेयरिंग चेक हो जाता है तो दैट विल बी कि फॉर एन एग्जांपल. ऑनलाइन प्रोसेस. या इट्स एन ऑनलाइन प्रोसेस. ओके. फिलहाल तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन का तो है नहीं सीन. तो उस टाइम पे मेरे साथ तो वर्स्ट सीन क्या हुआ था, आई वाज ड्राइविंग और मैं स्लम एरिया में था उस टाइम पे, ओ बिकॉज माय आई हैड वन शूट. एंड मुझे उसी स्पॉट पे मुझे कॉल आ गया कि uh, क्या, we will have to give the audition. I was like, just give me 10 minutes, मैं होटल में पहुंच के मैं ऑडिशन दे देता हूँ. He is like कि no no no, we don't have much time. मैंने ओके. गाड़ी को बीच में पार्क किया and I started giving my interview just like this. And he said कि अभी डांस करके दिखाओ आप. I was और like, मैं डांस कैसे करूँ, मैं रोड के अच्छा है बीच वही. बीच में. हाँ. या बिकॉज वो टैलेंट था, थोड़ा आता था स्किल, तो ही वाज लाइक करके दिखाओ. मैंने बोला ठीक है. मैंने अपने कार का पीछे का गेट खोला, अपने फोन को प्लेस किया एंड आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग. फिर उसके बाद दे लाइक कि नाउ शो अस वॉकिंग, लाइक हाउ डू यू वॉक. अब मैंने वैसे ही फोन रख के मैंने स्लम एरिया में ही मैं चल के दिखा रहा हूँ उनको. एंड वहां पे अब सारे लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी स्लम के लोग थे ना, सब देख रहे हैं ओके. कि ये लड़का कर क्या रहा है, ये टिकटॉकर है, ये रील कोई वीडियो कुछ वगैरह समझ बना नहीं पा रहा है. रहा है. हाँ. हाँ. एंड मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ. मैंने वो कर दिया एंड उनको वो चीज बहुत पसंद आई. कि यू गेट टू नो कि आपकी डेडिकेशन क्या है, मतलब आपको करना है तो आप कहीं भी कर सकते हो. तो उनको वो चीज पसंद आ गई थी, तब दे सेलेक्टेड मी कि हाँ यू हैव दैट डेयरिंग. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर डेयरिंग, कि आप कॉन्फिडेंस अपने आप को किस तरीके से लोगों को दिखा रहे हो, या जो इंटरव्यू ले रहे हो उसको कैसे दिखा रहे हो आप. तो कॉन्फिडेंस है, आफ्टर दैट डेयरिंग है. सिलेक्ट हो गए, हम्म. लाइक उसके फिर वो जो प्रोसेसन, लाइक प्रोसेस, उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस के बाद यू वांट द टाइटल ऑफ या स्टेट टाइटल, राइट. मिस्टर महाराष्ट्र. या फिर अच्छा, यू, महाराष्ट्र. या यू गेट अ कॉल कि अब आप आए अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करें एंड वी वांट टू सी. तब 2 दिन के सेशंस होते हैं. एंड ओ माय वो 2 दिन के सेशन में आई टेल यू वन थिंग, याद रखना, बिकॉज इट्स लाइक इट्स फॉर यू ओनली. आपको सोने नहीं मिलेगा, आपको ठीक से खाने नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको खाने के लिए हार्डली 10 मिनट्स मिलेंगे. एंड क्योंकि ये सारी चीजें नोटिस होती है कॉम्पिटिशन में, सब आप कितने जल्दी खाना खाते हैं, आप कितने जल्दी सो के उठते हैं, आप कितने पंचुअल है, आप कितने जल्दी अपने शॉट्स देके दूसरे शॉट देने जा सकते हैं, आप कितने प्लेसमेंट प्लेसमेंट मतलब आप कितना एडवर्टाइज कर रहे हैं जहां पे भी है. ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है. और हमारे पास 2 दिन था. 2 दिन में वी हैड टू डू एटलीस्ट 12 to 16 शूट्स. और उसमें आपको खाना खाना है, उसमें आपको अपने टैलेंट भी दिखाना है, उसमें आपको अपने इंटरव्यूज, क्योंकि और भी इंटरव्यूज होते हैं वहां पे जाने के बाद. सो इट वाज अ लेंदी प्रोसीजर. और इतना ही मैं बोलूंगा, जब आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करो, अपना सोना खाना पीना भूल जाओ बस. लाइक वो तो है, लाइक टैलेंट राउंड में एक्टिंग भी शो कर सकता है वही कंटेस्टेंट, या तो फिर सिंगिंग, डांसिंग, लाइक जो ऑन स्टेज होता है, राइट. ओके, राइट. तो वो तो टैलेंट नहीं, में इट्स होगा. नॉट ऑन स्टेज. इट्स नॉट ऑन स्टेज. ये स्टेज के बाहर की बात मैं बता रहा हूँ. स्टेज पे तो अच्छा. यू हैव टू बी प्रोफेशनल. यस. स्टेज के पीछे आपको नोटिस करते हैं वो, कि ये पर्सन अच्छा, कैसा तो है. हमारी कंपटीशन में, राइट, सुपरा नेशनल में भी वही है, हाँ. स्टेज के बैक में भी नोटिस चाहिए. बैक ज्यादा नोटिस होता है. सुब्रा का मेन कंपटीशन ज्यादा नोटिस नहीं होता है. जजेस आपको पीछे से देखते हैं कि आप कैसे इन्वॉल्व हो रहे हो, आप कैसे फ्रेंड सर्कल्स बना रहे हो, आप कितना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो. एंड टच वुड, उस टाइम पे जब एक क्वेश्चन पूछा गया था सारे कंटेस्टेंट को कि इफ नॉट यू देन हु,
So they all recommended Mr. Maharashtra like me, and I was not knowing it properly क्योंकि मैं नया नया हूँ, 2 दिन हुए आए हुए हैं, सारे लोग मेरा नाम ले रहे, तो इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी कि यार कैसे कैसे हो गया। बट उनका इतना प्यार मिला मुझे कि मैम ने मुझे सामने से बताया कि आपका ही नाम ले रहे हैं सब, तो हम आपसे ये सवाल नहीं पूछ सकते कि अगर आप नहीं तो कौन। तो उन्होंने मुझे खाली एक हिमाद्री मैम हमारी नेशनल डायरेक्टर है, शी इज अ लव। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था तब कि आपने इतनी हार देखी, आपने इतनी तकलीफ देखी, तो आपको ये कंपटीशन में रहने के लिए क्या मोटिवेट कर रहा था। मैंने मैं रियली बोलूं, मैं नहीं रोता हूँ ना, मैं मुझे रोना आता है कभी ऐसे पॉइंट पे, क्योंकि आई वाज प्रिपेयर्ड विद दिस क्वेश्चन ऑलरेडी। बट जब मैं आंसर देने गया इस क्वेश्चन का, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे फ्लैशबैक में मेरी मॉम याद आ रही थी, मेरे डैड याद आ रहे थे, उनके सपने, मेरे सपने सब एक साथ आके आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड हमारी नेशनल डायरेक्टर इतनी स्वीट थी कि वो गई, उन्होंने पानी वानी लाया, मुझे कंसोल किया, एंड शी गॉट द आंसर कि ओके, तो इसने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। क्योंकि वो आपकी आंखों से पता चल जाएगा, आपके रोने पे ही पता चल जाता है कि आपने कितना सैक्रिफाइसेस किए। सो इट जब वाज हमें पता है ऑनलाइन से बैठ के that you're going to win because you're the open winner of that pageant. You हम्म newly and that it was the first edition and you won the first edition. So आपका तो सबका रिमेम्बर रखेगा। तो अभी जो आएगा जो लाइक सामने जो pageant है तो वहाँ पे you will do a farewell walk and hand over the title to the new winner. तो या उस डेफिनेटली आई हैव टू डू what you दैट। want to say and what you want to say to those contestants who are currently participating for 2024 Mr. India Supranational. आई वुड से कि अगर आई बी वेरी फ्रैंक विद दिस, अगर आप लोगों की मेहनत हो गई है आपके हिसाब से, तो मैं बस इतना बोलूंगा, कंपटीशन आने तक और कंपटीशन होने तक पूरा रिलैक्स Mhm. रहो, पूरा रिलैक्स रहो, ठीक है। कंपटीशन की Mhm. फिक्र ही मत करना। मैं खाली बेस्ट सजेशन ये दूंगा कि कंपटीशन जाते ही एंजॉय करना स्टार्ट एंजॉयिंग इट, मजे करो, घूमो फिरो, मतलब अपना काम करना, हाँ बट वो तो उसके है। साथ जब भी टाइम मिले ना, प्लीज मस्ती मजाक करो वहां पे जाके। मतलब सबको एंटरटेन करो, सबको खुश रखो आजू बाजू, शो दैट यू हैव दैट पॉजिटिव ऑरा। मैं चाहता था ना मेरे शॉट तक आई आई हैव द टू फेस। एक जगह आई एम वेरी प्रोफेशनल क्योंकि इट्स माय वर्क, सेकेंडली आई लव फ्रेंडशिप, मुझे दोस्त अच्छे लगते हैं, और कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर देयर, मुझे आप दोस्त अच्छे लगे, मैं अभी अपना Thank काम करने you. के बाद 5 मिनट बाद आपके साथ मैं बात करने आ जाऊंगा, बोला Okay. और ब्रो कैसे हो, सब बढ़िया ना, I'll सब be ठीक ready. ठाक, I'll be ready राइट। anytime. सो आई Yes. यूज्ड टू डू दैट अ लॉट वहां पे, तो मैं सीधा और ब्रो कैसा है, क्या क्या ये वो, तो वो लोग खुश होते थे कि नहीं ब्रो, इतने तकलीफ में भी कोई है जिसके साथ हम स्माइल कर रहे हैं, तो किसी की स्माइल की वजह बन जाओ वहां पे। बाकी डोंट वरी अबाउट द टाइटल्स, ये टाइटल के पीछे मत भागो कि तुम्हें आज वो चाहिए ही चाहिए, आज नहीं है तो कल होगा, कल नहीं है तो परसों होगा। टाइटल्स के पीछे मत जाओ, अपने मेहनत के पीछे जाओ, और जो तुम हो वो ही रहो। तुम अगर मजे करते हो तो मजे ही करो। And like one more last question I wanted to ask you that कि हम्म आपका like Mr. India Supranational में हम्म final question answer round कैसा था and like कैसे होता है फिर like top 20 से कितना कट ऑफ हुआ then top 15 then top 10 या top 3 तो वो एक बताइए। हम्म। तो पहला जो राउंड होता है वो तो आपका नॉर्मल डिजाइनर्स के लिए वॉक होता है, ठीक है, तो वो किसी कैटेगरी में नहीं आता, इट्स अ नॉर्मल वॉक फॉर एवरीवन। Okay. एंड बेसिकली उसे ये भी कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं कि फर्स्ट टाइम आपको वॉक करके सबको साथ में अलाइन होना है, एंड यू हैव टू गिव योर इंट्रोडक्शन। जिसने भी अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया, मतलब जजेस को अट्रैक्ट कर लिया कि हो दिस इज समथिंग न्यू, तो मतलब उसका हो जाता है कि हाँ ब्रो चलो अभी आ गए नेक्स्ट टॉप 20 में। अब टॉप 20 में ऐसा होता है कि आपको अपना फिजिक दिखाना होता है। आप फिजिक के top साथ 20 कितने, या कितने, अपना फिजिक का मतलब ये नहीं बोलूंगा कि ये बॉडी को स्टिल रख के चलो, नो। आपके फिजिक का मतलब ये होता है कि आप फिजिक के साथ कितने फ्लेक्सिबल हो, या आप फिजिक के साथ कितने फ्लेक्सिबल रहते हो, वो नोटिस करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसके बाद आपका आता है टॉप 15। टॉप 15 में वापस डिजाइनर्स मिलते हैं, एंड उनका भी नॉर्मल वॉक होता है, ओके। वहां पे जजेस देखते हैं कि हुज मोर बेटर इन लुकिंग, मतलब वो आपका लुक वाला पार्ट रहता है। ये लुक बाद में आता है, इसलिए कहते हैं ना, पहले आपका स्पीच आता है, देन आपका फिजिक आता है, देन उसके बाद आपका वॉक रिप्रेजेंटेशन आता है, फिर उसके बाद आप जाते हो टॉप 7 या टॉप 5 में। तो जो टॉप 5 में आ जाते हैं उनको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
एंड उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज काम आता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जितना क्वेश्चन पूछा गया उतना ही जवाब दो, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम। एंड एक एक स्ट्रेट लाइन में कभी मत देना, थोड़ा सा घुमा के बोलना। कि जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर डू यू सी इंडिया इन नेक्स्ट 5 years, सो मेरा आंसर बस इतना ही था उस टाइम। आई गेस यू हैव हर्ड इट, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, बट आई वाज लाइक कि इंडिया ने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, और इंडिया अभी वहां नहीं है जहां भी उसे होना चाहिए, बट बहुत जल्दी इंडिया वहां पहुंच जाएगा। और इंडिया में ऐसी काफी चीजें आ चुकी है जिसपे पहले नजरअंदाज किया जाता था, आज उन सब चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको अपने कंट्री के बारे में ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे उस टाइम पे LGBTQ को ये मिला था, एक्सेप्ट किया गया था। मैंने Yes, वो, at that time. या तो उस टाइम पे मैंने वो चीज पढ़ी थी, मैंने वो चीज देखी थी, तो आई वाज कॉन्फिडेंट एंड आई वाज लाइक कि LGBTQ को वहां पे ये कर लिया, तो दे गॉट इम्प्रेस्ड कि अच्छा ही नोस, इसने देखा है वो। फिर हमारा GDP पे बात चल रही थी, देन उसके बाद G20 होने वाला था उस टाइम पे। सो ऑल दिस थिंग्स लाइक आपने नॉलेज लिया, आपने अपने क्वेश्चन में आंसर दे दिया, सामने वाला चुप, एंड उसके बाद आपको Like मिलते हैं टाइम। general awareness होना चाहिए. बहुत The one should बहुत have a ज्यादा, general awareness. बहुत ज्यादा लाइक आपसे पूछा जाएगा कि अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी इंडिया का क्या हालत है, क्योंकि आप इंडिया से हो, इंडिया की पॉपुलेशन बता दो क्या। तो ये ये वो होता है। क्या लाइक इंटरनेशनल स्टेज पे होता है ये क्वेश्चन दे नहीं आस्किंग? नहीं, ये ओके, दोनों नेशनली. दोनों दोनों स्टेज पे होता है, नेशनल इंटरनेशनल। तो ये नेशनल में सारा आपको लाइक प्रिपेयर, आई गेस सो दैट कि ये सारा क्वेश्चन से पूछता है तो दैट विल बी इन क्लोज्ड इंटरव्यू, एम आई राइट? सॉरी आई डिडंट गेट यू व्हाट। आई वांटेड टू आस्क यू दैट कि क्लोज्ड इंटरव्यू भी होता है, लाइक वन बाय वन एक कंटेस्टेंट जाते हैं, देयर आर या पैनल ऑफ जज एंड दे विल राइट। आस्क यू द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. उसमें क्या होता है? सो उसमें इट्स ऑल अबाउट यू, दे विल आस्क एवरीथिंग अबाउट यू। आप कौन है, आप कहाँ से आए, आपने क्या मेहनत की है, आप ये कंपटीशन क्यों लड़ना चाहते हैं, आपको इस कंपटीशन को लड़ने के बाद क्या फायदे हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या फायदा देने वाले हैं, और आप अपने कंट्री को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या अपनी कंट्री को किस तरीके से देखते हैं, आपके बारे में ही क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें। तो क्योंकि दे गेट टू नो ना कि ये बंदा अपने आप को लेके कितना कितना कॉन्फिडेंट है। या कॉन्फिडेंट, राइट? तो आप अपने कॉन्फिडेंस को वहां पे दिखा दीजिए, जस्ट कुछ नहीं, नॉर्मली बैठे रहना। दे स्टार्ट आस्किंग यू व्हाट आर यू अप टू, क्या कर रहे हो आप, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे। मुझसे पूछा गया मुझे कैसा लग रहा है, मैंने बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है, मन कर रहा है 2-3 दिन और रुक के जाऊं। दे स्टार्टेड लाफिंग, जस्ट लाइक यू, दे स्टार्टेड लाफिंग। तो yeah, that's how it goes, you know. Yeah, and you So have that quality to entertain people and like जैसे आपने कहा कि you are very frank to make a friend. mm, तो ये quality है आपके अंदर. Never like yeah, like the अभी कुछ देर ही पहले when you called, I just shocked कि like he don't know me, but फिर भी उन्होंने मुझे कॉल किया. And I was just telling my friend also, they all were shocked at that time. लाइक okay. दिखता है, लाइक एक इंसान के फेस से दिखता है कि वो कितना फ्रैंक है and कितना लाइक काइंड Mm, एंड पोलाइट हो सकता है. mm, एंड यू हैव दैट क्वालिटी. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि लाइक आप जैसा एलुमनी जो होता है हमारे कंट्री इंडिया को मिल रहा है, मिलेगा भी ऑब्वियसली इन फ्यूचर. mm. नहीं नहीं, डेफिनेटली आप, मैं खाली इतना ही कहूंगा कि मैंने अभी तक जितनी भी मेहनत की है, मैंने जो भी कुछ किया है, ये मेरे लिए नहीं है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था, ये आप लोग जैसे लोगों के लिए ही मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि मैंने जब सपना देखा था तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बहुत लाइक लाचार था, बेचारा था, कोई हाथ पकड़ने वाला था नहीं। बट मेरे देश से फिर मैंने सोचा मेरे देश से और बच्चे आने वाले, उनके लिए ये रास्ता कौन बनाएगा। तो हर बड़े का यही काम है कि अपने आने वाले जनरेशन के लिए ना रास्ता बनाए, और उनको वो पाथ दे, उसे इजी करे। वो कहते हैं ना कि वो लाइन जो है ना, उसे तोड़ के आप जैसे जनरेशन को हमें वो देना है जो इजी हो जाए। आज आप जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, राज ने जीता है तो हम क्यों नहीं जीत सकते। यू हैव एब्सोल्युटली. यही चीज मेरे भी घर में भी बोलते हैं सब कोई, लाइक हाइट नहीं है तो तुमको नहीं मिलेगा चांस जब एग्जैक्टली। आप जीते. तो हम सबको तो बताए फिर एट दैट टाइम कि देखो इनका भी हाइट उतना नहीं है, इज लाइक 5'8", 5'10". ये स्टिल वॉन द कॉम्पिटिशन. तो वाई, क्यों मैं नहीं जीत सकता, मैं एग्जैक्टली, क्यों नहीं जीत सकता, मैं भी कर सकता हूँ. तो वो जो एक सीमा था, वो जो एक बैरियर था, एक चीज था, वो आप लोगों के लिए तोड़ उसने दिया। आपने उस चीज को काट दिया. हम्म। तो हम लोग के लिए वो रास्ता खुल गया. अब हम लोग कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं और अपने आप को भी किसी से कम नहीं समझ सकते हैं. एग्जैक्टली और मैं एक चीज और बताऊंगा आप लोगों को कि मैं पूरा क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पे मैं वरुण वर्मा को सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा।
क्योंकि वरुण वर्मा, जब मैं सर्च कर रहा था कि मिस्टर इंडिया कैसे बनते हैं, तो मैंने वरुण वर्मा का इंटरव्यू देखा था। उसमें उसने कहा था कि ही इज 5'8" एक्चुअली। तो ये पहले 5'8"? वो, या ही इज 5'8", यू कैन गूगल इट। तो बट आई नो दैट ही इज 6 फीट टॉल। मैं नो उसको अभी भी फॉलो करता हूँ फेसबुक इंस्टा दोनों में। नो नो नो, ही समवेयर और द 5'8" या 5'9" के बीच में है। ओके ओके। एंड या एंड ही वाज द वन हु सेड इट कि अगर आप 5'8" है तो आप ना करें तो बेटर रहेगा। दैट वाज या समथिंग। उन्होंने कहा था, देन ओनली मुझे वो बात खटकी। मुझे हिट हुई, मुझे खुद को हिट हुई कि आप मिस्टर इंडिया होके ये चीज नहीं कह सकते। अगर वहां पे एलिजिबिलिटी लिखी है कि आप 5'8" हैं, आप जा सकते हैं, तो आपको उस टाइम, यही तो टाइम होता है जब आपको इनको मना करना है कि तुम गलत कह रहे हो, जा सकते हैं। एंड मुझे वही प्रूव करना था, क्योंकि मैं सोचा मेरे जैसे और भी लड़के हैं जो 5'8" हैं, दे वांट टू बिकम मिस्टर इंडिया। वो compete कैसे करेंगे इस वर्ल्ड में फिर? बट हाँ, जब मैंने ये डिसीजन लिया था, इट वाज अ हार्श डिसीजन फॉर मी ऑल्सो कि भाई होगा कि नहीं होगा। बट कर दिया, हो गया। हो गया खत्म। सो हो गया। या एंड तो अब टेंशन हाँ फाइव जी, एट का। अब हम लोग आराम से जा सकते हैं। हम लोग भी कॉम लाइक मेरा ड्रीम, हम अभी सोचे जिम ज्वाइन करेंगे आफ्टर सम डेज, एंड इट विल टेक लाइक 1 to 2 years टू बिल्ड अप माई बॉडी। अगर मैंने बहुत अच्छी कड़ी मेहनत कड़ी की, मुझे मिस्टर मेहनत। इंडिया। जी। एक बात बताओ, कड़ी मेहनत अगर करनी है ना तो 3 महीने में बॉडी बन सकती है। हाँ। अगर कड़ी मेहनत कर रहे हो तो। व्हाट इज कड़ी मेहनत? जब आप अपने आप को ना डाल चुके हो अपने आप को पूरा उसमें, कि नहीं, अगर मुझे जहां पे कर आपके 3 सेट, मेरा या ड्रीम है। बहुत से ड्रीम। लाइक सुपरानेशनल इज माय ड्रीम। लाइक अभी इंटरनेशनल में मुझे लाइक मिस्टर वर्ल्ड भी बनना है। मिस्टर वर्ल्ड हम्म का तो अभी फ्रेंचाइजी इंडिया को हो चुका है, किसी के पास भी नहीं है। सभी हम्म जो हाथ के सामने है, मिस्टर सुपरानेशनल भी वन ऑफ द बिग 4 इंटरनेशनल पैजेंट्स में आता है, तो मुझे उसमें तो जाना ही है। हम्म तो मैं अभी नेक्स्ट ईयर के लिए सोचा, क्योंकि करेंटली आई एम नाउ 19 एंड दिस ईयर इन October 30 हम्म। एंड टर्न 20। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आई विल बी एलिजिबल बिकॉज द एज क्राइटेरिया इज 20 to या 32। गो फॉर 32 इट। साल एंड के लिए। आई वुड सजेस्ट यू समथिंग बिफोर गोइंग कि अगर कुछ ऊपर नीचे भी होता है, प्लीज अपना मन उदास मत करना। ठीक है? जब मैं क्योंकि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम रूबरू मिस्टर इंडिया किया था, तो आई वाज इन दैट, यू नो, और आखी भाई मैं जीतने वाला हूँ, आई एम द बेस्ट, मुझसे अच्छा कोई है नहीं, मुझसे अच्छा ये नहीं है। बट डीप डाउन मैंने अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर किया था कि व्हाट इफ मैं हार गया तो। हम्म, तब आंसू आते हैं स्टेज पे, तो सब देख रहे हैं आपको। लेकिन मैंने अपने आप को दिमाग में ऐसे बैठा लिया था कि अगर आज मैं हार भी गया ना, तो मैं हारा नहीं हूं, मैंने सीखा है खाली। तो मेरे आंसू नहीं गिरे। तो अगर आप कभी हारते भी हैं तो आपके पास और 2-3 साल है। ठीक है? आप देखिए कि आप क्यों क्यों हारे, आपने क्या ऐसा गलत किया कि आप हारे। वापस रिकवर करिए, वापस जाइए। वो खुश होते हैं सामने वाले कि अरे यार, ये लड़का बार बार आ रहा है, ये मेहनत कर ही जा रहा है, और ये बदलते बदलते आ रहा है बार बार। ये चीज याद रखना। चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट। चेंज करते रहो, करते रहो, करते रहो, बेटर 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 बेटर, दिल बी लाइक ही इज द बेस्ट। हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंस्पिरेशन। मेरे फ्रेंड में भी ज्वाइन किए हैं, उनको भी, उनका भी ड्रीम ही है लाइक हम्म। मिस्टर सुपरनेशनल में करना। वो अभी 22 ईयर्स का है, मेरे से एज में बड़ा है, बट हम लोग फिर भी फ्रेंड्स हैं। अच्छा। लाइक फ्रैंकली हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके। तो हम लोग तो पैजेंट फैन है ये जाना भी। अब देखिए इस साल कौन विनर बनता है। आई होप जो भी होगा अच्छा होगा, आई इंडिया वुड को से खेल कर। जो भी रहेगा बेस्ट ही रहेगा। एंड काफी प्यारा रहेगा, क्योंकि मिस्टर इंडिया या मिस्टर वर्ल्ड जो भी होते हैं, मतलब मिस्टर यूएसए या मिस्टर कोरिया, होम इट इज, दे चूज द बेस्ट। एंड बेस्ट एज इन बहुत फ्रेंडली होते हैं। तो हमारा आधा काम वही खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अच्छा हूँ, वो अच्छा नहीं है, तो मेरा काम डिफिकल्ट हो गया उस वजह से। बट राइट। या यू हैव टू बी वेरी कोऑपरेटिव। हो जाता है फिर। ओके। Can you please show your sash? This या one, like डेफिनेटली या you want to say? ओके सो Oh my god! हियर इट इज। Oh my god! This is so amazing. Like it's from Mr. Supranational, am I right? या Okay. Gajab, like my dream. Like someday I will be also and someday wearing this I one. would be giving it to you, right? Oh my You god! will get it Like for sure. getting crowned by you will be my privilege. Getting crowned by you will be my privilege. I know you will be there whenever I will be competing. You will be there. I know.
And maybe आज you will be judging me further. Maybe आप judge panel में हो at that time. बट मुझसे वो पार्शियलिटी मत एक्सपेक्ट करना No, बिल्कुल I भी। know, I know, I know. Partiality क्यों? जो अच्छा करेगा उसको मिलेगा ही. उससे ही कोई That रहता है यार। time. सो जो अच्छा करेगा हम्म उसको मिलेगा ही. उस partiality का कुछ भी नहीं है तो उसमें. बस अच्छा बनना चालू कर दो। जी. Thank you so ठीक है much भाई। for this interview. I really enjoyed and हम लोग के audience को भी बहुत अच्छा हम्म लगा. And thanks for हम्म joining the interview and giving me this opportunity to take your interview. And I हम्म। hope that आप आगे और भी बहुत बड़े स्टार बने. And at that time फिर हम आपका इंटरव्यू लें उस दिन. नहीं डेफिनेटली होगा, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए एंड ज्यादा स्ट्रेस मत लो। ठीक है, आराम आराम से टेक स्मॉल स्टेप्स, यू विल गेट इट। और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। ओके, नॉलेज गेन Okay. करते रहो और ऐसे ही रहना। ओके, ऑल द बेस्ट। Oh, thank you so much. Bye. थैंक यू, बाय बाय। Bye bye. Thank you everyone for joining today's live. And जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंटरव्यू करते वक्त इतना सारा नॉलेज हम लोग को गेन हुआ तो मिस्टर सुप्रानेशनल इंडिया, and he was very inspiring person that I've ever seen in my life. And this is my first interview that I'm taking of Mr. India Supranational. And I hope you like it. So next time when I will start this live and will invite someone else. So I hope that you all guys will be joining at that time. So thank you so much for this interview. Jai Shri Ram.